Hi guys, welcome to our channel UPSC on Mars. So this is a new initiative which is Daily Current Affairs for UPSC Prelims 2025. तो इसमें हम द हिंदू के न्यूज़ का एनालिसिस करके ये अ, कोशिश करेंगे कि प्रीलिम्स में उन सारे न्यूज़ से क्या आ सकता है। तो कुछ ऐसा ही अप्रोच रहेगा हमारा और कुछ ऐसे टॉपिक्स होंगे जो बहुत ही बड़े टॉपिक्स होंगे, जैसे कि आज के न्यूज़पेपर में देयर इज़ अ टॉपिक ऑफ इन्फ्लेशन। तो उसका हम ऐसा करेंगे, आई जस्ट गिव यू द ब्रीफ इन दिस वीडियो। और क्योंकि ये टॉपिक बहुत बड़ा है तो आई अपलोड अ डेडिकेटेड वीडियो ऑन दिस लेटर ऑन। ठीक है, तो ऐसा अपना अप्रोच रहेगा। आई ट्राई टू कीप द वीडियो वेरी शॉर्ट। तो yes, before going to the content of the video, I would like to give you a brief about our courses. So we have four courses specifically designed for prelims. So the first course is the customized mentorship program. This is our flagship course. इसमें we have limited the seats to 200 because with all the things that we are providing in this program, we want to uh, give the best quality we can, and for that we have limited the number of seats. So in this you get a dedicated mentor, uh, then you get a customized planner और भी सारे details होंगे। तो I'll share the link of the details of the courses जो कि already uploaded है हमारे channel पे। तो I'll share the link in the description। तो जिनको courses के बारे में जानना है, just go to the link। फिर then there is without mentorship, then we have 2.5 years current affairs plus 25 years PYQ analysis, and then there is sole current affairs program which is 2.5 years current affairs. So why this 2.5 years current affairs? So we have seen in our preparation journey कि UPSC keeps a track of 2.5 to 3 years current affairs और उससे वो questions पूछता है। तो we have chosen this balanced period which is 2.5 years. तो that's it about the courses. चलो अब वीडियो शुरू करते हैं। So this is the PDF जो I have prepared from the Hindu analysis. So you can see the index. Now what I'll do, I'll shift to the newspaper. I'll toggle between the newspaper and my PDF. So I'll show you the news and then I'll come back to this PDF to show you the relevant information for the prelims 2025. तो चलो न्यूज़पेपर देखते हैं. So this is the first page. Here you can see inflation. अब न्यूज़ यहाँ पे कुछ भी हो, we need to understand that inflation prelims में inflation related क्या क्या आ सकते हैं. तो we need to have some idea about inflation static part से. तो let's see इससे static part से क्या निकल सकता है. Inflation. Now inflation का I have tried very comprehensively in this PDF. तो PDF थोड़ा बड़ा भी बन गया है. And one more thing, the PDF I've chosen the landscape page. तो इससे शायद number of pages भी आपको ज़्यादा लगेंगे. तो don't worry about the number of pages. So inflation. So what is inflation? Inflation is basically the price rise of any goods or services. ठीक है. तो with time जो price rise होता है उसे inflation कहते हैं. There are different types of inflation which are based on causes or rates. तो causes के कुछ inflation के types हैं. Demand pull inflation. Demand में क्या होता है कि if demand increases and supply remains the same, तो उससे inflation बोले तो price rise होती है. Next is कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन और बिल्ट इन इन्फ्लेशन. इसमें जो प्रोडक्ट बनाने में जो लगता है उसके प्राइसेस बढ़ जाते हैं. सो द कॉस्ट इट सेल्फ गेट्स इंक्रीजेस. ठीक है, तो इसके वजह से इन्फ्लेशन आता है. देन देर इज सप्लाई शॉक. तो सप्लाई चेन में कुछ भी ऊपर नीचे होता है तो उससे इन्फ्लेशन बढ़ता है. लेट्स सपोज देर इज़ अ हाईवे जहाँ से सारे प्रोडक्ट के शिपिंग और ट्रांसपोर्टेशन का काम देखा जाता है. नाउ दैट हाईवे इज़ डिस्टर्ब्ड. अब क्या होगा कि जो प्रोडक्ट है मार्केट में वो उतने
नंबर्स में अवेलेबल नहीं रहेंगे, तो देन देर विल बी अ शॉर्टेज ऑफ प्रोडक्ट्स। तो वहाँ पे इन्फ्लेशन आएगा। देन देर इज स्ट्रक्चरल, तो ब्यूरोक्रेटिक कुछ भी होता है या फिर लॉज एंड रेगुलेशंस के हिसाब से बिजनेसेस अच्छे से कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च नहीं कर पाते हैं, तो उसके वजह से प्रोडक्ट बनाने में प्राइस ज़्यादा लगता है, तो दैट इज़ कॉल्ड स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन और बॉटलनेक इन्फ्लेशन। देन देर इज़ प्रोटीन इन्फ्लेशन। दिस इज़ इंटरेस्टिंग टर्म, तो आप इसको प्रीलिम्स के लिए अच्छे से ध्यान रखो। प्रोटीन इन्फ्लेशन मीन्स जब इनकम हमारा बढ़ता है, तो वी ट्राई टू टेक केयर ऑफ आवर डाइट्स, तो उसमें वी ट्राई टू इनकॉर्पोरेट गुड डाइटरी न्यूट्रिएंट्स। तो उससे क्या होता है, वी स्टार्ट बाइंग कॉस्टली वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, तो उसके वजह से देर इज़ अ प्राइस इंक्रीज इन जनरल ग्रोसरी प्रोडक्ट्स और एनी सर्विसेज ऑल्सो। देन देर इज़ बेस्ड ऑन रेट। तो आई थिंक इस पूरे टॉपिक को समझाना यहाँ पे पॉसिबल नहीं होगा। I'll launch and I'll upload a dedicated video on inflation, तो आप इस पीडीएफ में पढ़ लो। बाकी लेट्स गो टू द नेक्स्ट टॉपिक। Wait, next topic will be I'll show you the news. Diego Garcia, and it is a place, so places in news आते हैं यूपीएससी में, तो लेट्स सी क्या है। दिस इज डिएगो गार्सिया। अब इससे कुछ स्टैटिक इन्फॉर्मेशन हमें थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। दैट डिएगो गार्सिया इज़ अ ब्रिटिश इंडियन ओशन टेरिटरी, इसका पार्ट है। देन इट वाज सेपरेटेड इन 1965 फ्रॉम मॉरिशस, ठीक है। और फिर इन 1966 यूके लीजेस डिएगो गार्सिया टू यूएस टू क्रिएट एयर एंड नेवल बेसिस। तो ये सारे इन्फॉर्मेशन आपको, बिकॉज यूपीएससी किसी भी ऑप्शन में ये स्टेटमेंट दे सकता है अगर उसको पूछना हो, बिकॉज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजिकली, बिकॉज यूएस का एयर एंड नेवल बेस है यहाँ पे, और ये न्यूज़ में भी काफ़ी रहता है, तो स्ट्रैटेजिकली इम्पॉर्टेंट प्लेस है। तो इसके वजह से थोड़ा बहुत स्टैटिक पार्ट का नॉलेज इसमें होना चाहिए, ठीक है। आई हैव गिवन दिस इंफॉर्मेशन यहाँ पे बिकॉज एक यूपीएससी में एक क्वेश्चन आया था, उसमें एक स्टेटमेंट था कि देर इज़ नो हैबिटेशन और देर इज़ नो पॉपुलेशन लिविंग इन दिस एरिया करके। आई डोंट रिमेंबर द क्वेश्चन बट आई रिमेंबर द ऑप्शन। तो इसमें ऐसा इंफॉर्मेशन था कि देर इज़ नो परमानेंट पॉपुलेशन ऑन डिएगो गार्सिया। तो इससे एक ट्रिकी स्टेटमेंट बना सकता है यूपीएससी। तो आप बस इसको अच्छे से मतलब दिमाग में ध्यान रखना, ठीक है। दिस इज़ द मैप, डिएगो गार्सिया इज़ हियर। तो सी दिस इज़ इंडिया, दिस इज़ लक्षद्वीप, दिस इज़ Maldives, दिस इज़ Chagos Island, एंड डिएगो गार्सिया इज़ अ पार्ट ऑफ Chagos Island, ठीक है। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट इज साइंस एंड टेक का कुछ होगा। सी द नेक्स्ट न्यूज़, वहाँ से चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ इज कूदनकुलम। द नेक्स्ट टॉपिक इज न्यूज़ में ये था कूदनकुलम। तो इस पे हमें न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। लेट्स सी क्या आई हैव गिवन। तो न्यूक्लियर एनर्जी इज़ द फोर्थ लार्जेस्ट सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन इंडिया, ठीक है। हमारे पास इंस्टॉल कैपेसिटी इज़ 6780 मेगावाट्स। फिर हमारा एम्बिशन है बाई 2032 वी मस्ट रीच अप टू 63,000 मेगावाट्स का कैपेसिटी फ्रॉम दिस न्यूक्लियर एनर्जी ओनली। फिर लार्जेस्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट इस कूदनकुलम तमिलनाडु में है। देन फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट established in 1969 is the Tarapur Atomic Power Station, and Apsara is the oldest or first nuclear reactor of India. It was designed by BARC, ठीक है। दिस इज द लिस्ट, आप इसमें मतलब याद कर लो। नेक्स्ट, नेक्स्ट इज, लेट्स सी नेक्स्ट क्या है।
नेक्स्ट इज लैंडस्लाइड्स। अब देखो यहाँ पे लैंडस्लाइड्स दिया हुआ है, तो वी जस्ट हैव टू सी द स्टैटिक पार्ट ऑफ लैंडस्लाइड। चलो, लैंडस्लाइड में कुछ खास इन्फॉर्मेशन ऐसा नहीं है याद करने का, आई हैव गॉन थ्रू इट। तो इसमें बस एक ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में अगर स्टेटमेंट आ सकता है तो ये है कि, एक मिनट, जो लैंडस्लाइड जिसमें वो डेब्री गिरते हैं, दैट हैपेंस बिकॉज ऑफ द दैट हैपेंस अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। ये याद रखना बस, ग्रेविटी। चलो, नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक इज भोगी फेस्टिवल। इसमें देखते हैं स्टैटिक थोड़ा। भोगी फेस्टिवल, दिस इज फ्रॉम आर्ट एंड कल्चर। भोगी फेस्टिवल, तो ये पोंगल का फोर्थ डे को सेलिब्रेट करा जाता है, और तमिल मंथ कुछ होता होगा, मार्गाजी, इफ आई एम प्रोनाउंसिंग रॉन्ग तो माफ़ कर देना यार। चलो, सो दिस इज़ द इंफॉर्मेशन अबाउट भोगी फेस्टिवल। यूपीएससी फेस्टिवल्स के बारे में, खासकर साउथ इंडियन फेस्टिवल्स के बारे में और नॉर्थ नॉर्थ ईस्टर्न फेस्टिवल्स के बारे में थोड़ा इंटरेस्ट रखता है, तो वी नीड टू हैव सम आइडिया अबाउट दीज थिंग्स, और ये करंट में है तो दैट्स व्हाई आई हैव गिवन इट हियर। तो ये आप देख लेना, ठीक है। ये याद रखना, ये स्टेटमेंट आ सकता है कि पीपल गेट रिड ऑफ देयर ओल्ड आइटम्स इन दिस फेस्टिवल, तो ये याद रखना आप। चलो, नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक, लेट्स सी नेक्स्ट टॉपिक में क्या है। अगेन अ फेस्टिवल, मकरा विल्लकू। इसमें ये अयप्पा वाला होगा शायद। यस, सी, इट हैपेंस और कोइंसाइड्स विथ मकर संक्रांति। ठीक है, ये भी साउथ का एक है। सबरीमला में होता है, तो सबरीमला इज़ अ इम्पॉर्टेंट प्लेस, तो आप इसलिए ये बस याद रखना कि इसके बारे में थोड़ा डिटेल, ठीक है। यहाँ पे दिस फेस्टिवल मार्क्स द डे व्हेन लॉर्ड अयप्पा इज बिलीव्ड टू हैव अपीयर्ड एज अ डिवाइन लाइट। ये स्टेटमेंट आ सकता है अगर ये पूछे मकरा विलक्कू फेस्टिवल के बारे में कुछ भी यूपीएससी, तो आई हैव ट्राई टू गिव यू वेरी, मतलब ऐसे स्टेटमेंट्स जो यूपीएससी दे सकता है और जहाँ लोग कंफ्यूज हो सकते हैं। चलो, नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक, इसमें कुछ खास नहीं था आज। ये शायद डेटा प्रोटेक्शन वाले, नो नो नो। PM Kisan is in the news, so I've not given anything about scheme because यूपीएससी में स्कीम्स पे क्वेश्चंस काफ़ी कम आते जा रहे हैं, तो फ्लैगशिप स्कीम्स के बारे में एक साथ ही आई गिव यू द नोट्स, तो डोंट वरी। और वो कहीं भी मिल जाएगा आपको स्कीम्स का नोट्स, तो आप फ्लैगशिप कुछ कुछ स्कीम्स होते हैं, बस बस उसके बारे में आप आइडिया रखो। सारे स्कीम्स के बारे में मतलब स्कीम्स के पीछे ज़्यादा नहीं भागना है, ठीक है। चलो, नेक्स्ट। अच्छा, यहाँ पे आई वुड लाइक टू शेयर एन इन्फॉर्मेशन। एयरलाइंस में है, तो देर इज़ अ टर्म कॉल्ड ब्लैक बॉक्स। मतलब आपको ये याद रखना है कि ये दिस इज़ रिलेटेड टू एयरलाइंस, एंड आई हैव ऑल्सो शेयर्ड माई PDF ऑफ दिसंबर करंट अफेयर्स, तो उसमें दिस इज़ गिवन, तो आप वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे अवेल कर सकते हो। चलो, नेक्स्ट टॉपिक। डिजिटल अरेस्ट स्कैम, अब इसके बारे में हमें जानना है ना। ये न्यूज़ में तो है, बट व्हाट आई हैव नोटिस्ड कि जो जैसे 25 का एग्ज़ाम है ना, तो अभी एक साल में डिजिटल अरेस्ट स्कैम काफ़ी न्यूज़ में रहा है। तो व्हाट आई हैव नोटिस्ड कि जो बहुत ज़्यादा रीसेंट न्यूज़ में बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड रहता है, यूपीएससी डजंट आस्क, तो बट स्टिल क्या पता इस बार पूछ ले। तो आई गिवन सम इंफॉर्मेशन अबाउट दिस, तो चेक।
तो इसमें कुछ नहीं, स्कैमर विल पोज एज समवन फ्रॉम गवर्नमेंट एजेंसी एंड ही और शी विल स्टार्ट थ्रेटनिंग यू। तो ऐसा करके वो आपसे पैसे वैसे लेंगे। तो दिस इज द इन्फॉर्मेशन। इससे रिलेटेड एक अच्छा इन्फॉर्मेशन ये है कि देर इज़ अ सेंटर कॉल्ड इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर। तो ये एमएचए के अंडर आता है। फिर इसका बस ये याद रखना कि दिस इज रिलेटेड टू कर्बिंग साइबर क्राइम्स। इंफॉर्मेशन इज गिवन हियर। इससे ज़्यादा नहीं करना आपको इसमें। चलो नेक्स्ट। गंगा सागर वॉज डेल्ट yesterday। तो कल का पीडीएफ आई हैव शेयर्ड माय टेलीग्राम चैनल, तो आप उसमें देख सकते हो। नेक्स्ट इज दिस फंगस, ट्राइकोफाइटन इंडोटाइनिया। See, so what I have noticed in my experience that UPSC loves these kind of topics which is related to microorganisms. तो fungus हो गया, algae हो गया, ये सब पे UPSC keeps on asking questions. So that's why I have chosen this. So it is a dermatophyte, which means it is related to skin. So derma is related to skin. आप ये बस याद रखना। तो कल को कुछ और टर्म डर्मा से रिलेटेड आ गया तो you'll have the idea कि this is related to skin. तो it causes skin infections। ठीक है। It was first identified in India। ठीक है। Now it is present in several countries। And this thing comes from India। So this was named after India because uh, there is a controversy also, but वो रहने देते हैं। बस इतना information लेते हैं कि this was named after India। ठीक है। I've given you the information। This is resistant against first line antifungal agent। चलो next topic। Let's see the next topic। Direct tax, again a big topic, but um, इसके लिए भी I'll upload a video। देखते हैं a little information about direct tax which I have given in the PDF। चलो, economy, yes, direct tax। Direct tax, so it refers to the type of tax that is borne by a person on whom it is levied। मतलब जिस पे लगता है वही वही पे करता है। तो इसका इम्पैक्ट और इंसिडेंस दोनों उस पर्सन को ही बेयर करना पड़ता है। ठीक है। इसका मतलब यही होता है। इट इज़ एडमिनिस्ट्रेड बाय सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस विच इज़ अ पार्ट ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ये स्टेटमेंट आप अच्छे से याद कर लेना। ठीक है। ये स्टेटमेंट बिकॉज यूपीएससी ऐसा दे सकता है, आप कंफ्यूज ना हो। तो इम्पैक्ट ऑफ टैक्स एंड इंसिडेंस ऑफ टैक्स ऑन द सेम पर्सन। तो ये दोनों थोड़ा टेक्निकल स्टेटमेंट है, आप अच्छे से ध्यान रखना इसको। इट इज़ ऑल्सो नोन एज प्रोग्रेसिव टैक्स बिकॉज द टैक्स रेट इंक्रीजेज एज द इनकम लेवल इंक्रीजेज। तो डायरेक्ट टैक्स का एग्जाम्पल ये क्या हो गया, इनकम टैक्स। तो वहाँ से समझ में आ रहा है कि इनकम बढ़ेगा, टैक्स बढ़ेगा, प्रोग्रेसिव टैक्स। ठीक है। तो जो ज़्यादा कमा रहे हैं उनको ज़्यादा पे करना पड़ रहा है, दैट्स वाई इट इज़ प्रोग्रेसिव। तो एक दो तीन, ये तीन स्टेटमेंट आप अच्छे से याद कर लो। दीज आर सम एग्जाम्पल्स। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक। वाइल्ड फायर वॉज इन न्यूज़। इससे कुछ स्टैटिक जो यूपीएससी पूछ सकता है, लेट्स सी। वाइल्ड फायर से वेट, यस, वाइल्ड फायर से फॉरेस्ट फायर, बिकॉज इंडिया में फॉरेस्ट फायर होते हैं। तो यूपीएससी माइट आस्क दिस फॉरेस्ट फायर्स। तो इंडिया हैज़ 36% ऑफ फॉरेस्ट प्रोन टू फ्रीक्वेंट फायर्स। एक ये डेटा हो गया। दिस आई हैव गिवन जस्ट फॉर द रेफरेंस। आप इसको नहीं भी याद रखोगे तो चलेगा, बट दिस स्टेटमेंट यू मस्ट मेमोराइज। ठीक है।
और ये स्टेटमेंट बिकॉज यूपीएससी शायद इस पे आपको कंफ्यूज कर सकता है, बिकॉज ये थोड़ा सा ट्रिकी है। तो आप इसको बस ऐसे थोड़ा याद कर लेना यार, दैट इट इज़ ऑफिशियली रिकग्नाइज्ड एज अ डिज़ास्टर इन इंडिया। अब ऐसा स्टेटमेंट देता है तो बच्चे थोड़ा हड़क जाते हैं कि पता नहीं सही है कि गलत है। तो दिस इज़ ऑफिशियली रिकग्नाइज, ऐसा आप पढ़ लो, दिमाग में डाल लो, ठीक है, एज पर एनडीए में। चलो, इससे रिलेटेड इतने इन्फॉर्मेशन था। नेक्स्ट टॉपिक, चागोस आइलैंड, डिएगो गार्सिया, दोनों एक ही सेम चीज़ है, तो आप डिस्कस दैट। नेक्स्ट स्पोर्ट्स, इसके बाद आएगा एक इम्पॉर्टेंट थिंग विच इज़, आई डोंट नो इसको क्या प्रोनाउंस करते हैं, बट आई एम सेइंग इट इज़ सादा, और सड़ा भी कह सकते हैं। चलो, लेट्स सी द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू दिस। Geography, yes. So it is a erosional landform, ठीक है। सादा is a erosional landform, flat tops region on the Konkan region of Western Ghats, ठीक है, locally called सादा और सड़ा, I don't know, सड़ा, चलो रहने देते हैं यार। Characteristics, ऐसे तो it is mostly barren, that's why it is also classified as wasteland, but in monsoon uh, it becomes a little fertile. So this was about Sada. This is important. आप इसको याद कर लो. UPSC loves to ask these kind of terms. तो वैसे तो I've tried to give all the relevant information जो prelims में जिस हिसाब से UPSC पूछ सकता है. But still उसमें कुछ ज़्यादा important है तो I'm mentioning in the video. तो ऐसा नहीं है कि कुछ सारे चीज़ important नहीं है. Everything is important. तो आप उस हिसाब से देखना. चलो, I think the newspaper ends here. This was it. आप ये PDF, download this PDF. Oh, there was this RTI also. I missed this. पॉलिटी में there was this RTI का न्यूज़. चलो रहने देते हैं उधर, इधर ही देख लेते हैं. तो 20th एनिवर्सरी 2025 में होने वाला है. that's why it becomes important. और RTI वैसे भी is important. तो RTI पे I'll upload a dedicated video. तो एक इन्फ्लेशन हो गया, एक RTI हो गया, and there is taxes. So these are big topics. तो इस पे I'll upload dedicated videos. थोड़ा इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं. इसका कोऑर्डिनेटिंग एजेंसी इज दिस डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग अंडर मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशन. A little background of RTI. तो इंडिया enacted Freedom of Information Act in 2002. Later RTI 2005 replaced this in Freedom of Information Act. और इस केस में सुप्रीम कोर्ट mentioned that RTI comes under Article 19. ठीक है. So this was the information relevant for prelims. Dedicated videos on inflation and RTI will be uploaded. ठीक है. तो the video ends here. This is our courses के videos I'll give in description. Please subscribe to our channel because a lot more is coming. और जो भी आएगा बहुत relevant होगा prelims के लिए, because prelims is really very tricky and I'll try my best to give you the best. चलो, it was lovely sharing this content with you. Bye bye.